Hello, viewers. I welcome you all back to another insightful journey with us on our channel UPSC Educare. In our last video, we delved into the intricate dynamics of rural livelihood as we explored in Chapter 7. Today, we are shifting our focus to the bustling streets and vibrant communities of urban areas as we unravel the complexities of urban livelihoods in Chapter 8 of our civics textbook, NCERT textbook of class 6. So let's explore the diverse ways in which people in cities make a living, navigate through the challenges and opportunities that urban life presents. The chapter is that two sisters are there, two cousins. वो मार्केट में सुबह सुबह जा रही हैं, तो वो क्या कुछ इनकाउंटर करते हैं थ्रू आउट द डे, वो कितनी सर्विसेज देखती हैं, ये चैप्टर उसके बारे में है. तो एक लड़की होती है, वो अपनी कज़न के पास गई होती है जो अपनी सिटी में रह रही है, और वो उसके साथ बाहर मार्केट में निकली है. पूरा दिन मार्केट में स्पेंड करके आ रही है. आने तक वो बहुत ज़्यादा टायर्ड अप होती है, बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है. तो इन बिटवीन थ्रू आउट द डे what all jobs she have encountered, what she have noticed is all explained in this chapter. तो हम उसका पूरा एक दिन का स्टोरी देख रहे हैं. सो शी सेज दैट इन द वेरी अर्ली मॉर्निंग, okay, main market is very busy with activities. Okay, all sort of activities is going on and it seems like it is buzzing. Okay, the bees buzz the same way. It seems like market is buzzing, okay, with all the sort of activities. There is presence of vegetable vendors who is busy arranging vegetables on her stall. She is arranging all the vegetables in the basket so that everyone, whoever comes across there, are easily able to figure out what all vegetables she is having. Just next to her is a florist who is having colorful flowers along with her. Okay, then is to the next side, to the opposite side, one newspaper seller is there. One member is selling newspaper and they can hear people shouting for the newspapers, narrating the headlines very loudly, discussing about all the news, etc. Okay. Then she witnesses is buses and auto rickshaws. The buses is about school buses and all. Okay. Which are filled with, of course, children, the kids, because in the early morning where they will be going to school. Then one cobbler is there under a tree. He is arranging all his materials. Then next over there she notices is a barber. Next to the roadside is a barber. He is having a customer right in front of him for a early morning shave. Okay, so he is shaving. Then is a woman who is pushing the cart selling various items like plastic bottles, boxes, clips, हेयर पिन्स एक्सेट्रा. सो शी इज सेलिंग ऑल दिस. तो एक कार्ट है, एक कार्ट क्या होता है, एक गाड़े टाइप में है. ठीक है, जैसे अपन देखते हैं ना कि बहुत सारा सामान एक पे रख करके एक आदमी उसको घसीटते हुए लेके जा रहा है, उसको सेल आउट कर रहा है, तो बस वही. बार्बर नाई है, शेविंग कर रहा है. कॉबलर शू पॉलिश वाले को बसेस और वो हो गए, ऑटो रिक्शा हो गए, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं बच्चों को. फ्लोरिस्ट फूल बेचने वाला, वेजिटेबल वेंडर वेजिटेबल सेल आउट करने वाला. उसके बाद में वेजिटेबल एक साइकिल ट्रॉली पे भी है, वेजिटेबल्स है और उनको वो लेते हुए जा रहा है. उसके बाद में रिक्शाज है जो बहुत सारी रोज में देखा होगा ना, बस स्टैंड के आसपास रिक्शा जो बड़ी लाइन लंबी लगा के खड़ी होती है वेटिंग फॉर देयर कस्टमर्स. तो ये सब वो वहाँ पे देखते हैं. नाउ व्हाट दे डू, दे हेड टूवर्ड्स द रिक्शा वन जिसका नाम है बच्चू मंजी. ठीक है, उसके पास जाते हैं, उससे ऑटो रिक्शा लेकर के वो अपने काम के लिए निकल जाता है. सो नाउ द स्टोरी अबाउट बच्चू मंजी. ठीक है, आज रिक्शा पुलर वो उसके पास जाते हैं, उससे उन्हें क्या पता चलता है. तो उनसे पता चलता है कि ये बिहार के रहने वाले थे. ही वॉज फ्रॉम बिहार एंड ही वॉज अ मेसन वर्कर, जो पत्थरों का काम करते हैं. तो ही वॉज अ मेसन वर्कर. आप बेसिकली बोल सकते हो चिनाई का काम जो करते हैं, जब घर बनते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो एक कंस्ट्रक्शन लेबर एज अ काम करता था. ठीक है, ओके. देन इनका वर्क क्या था,
क्योंकि कंस्ट्रक्शन रेगुलर नहीं है तो इरेगुलर वर्क था और इनकम बहुत ज़्यादा लो थी, बिकॉज ऑफ विच ही वॉज फोर्स टू केम टू सिटी। वो अपनी मर्जी से नहीं है, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्हें सिटी आना पड़ा। आफ्टर शिफ्टिंग टू सिटी ही बॉट अ रिक्शा साइकिल, सेकेंड हैंड रिक्शा साइकिल, ओके, एन ओल्ड रिक्शा साइकिल, जिसका उन्होंने पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट्स में किया। ठीक है, एक साथ तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सेकेंड हैंड भी खरीद सके, तो वो भी उन्होंने किश्तों में पैसे जमा किए, इंस्टॉलमेंट्स में किए। बस लगभग जहाँ पे बस स्टैंड के आसपास ये रहते थे और यहाँ से जो 6 किलोमीटर का एरिया था, फॉर 6 किलोमीटर, इतनी दूर में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करता था। एंड ऑलमोस्ट टिल इवनिंग 8:30 के अराउंड तक इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है। डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ही वॉज पेड फ्रॉम 10 रुपीज़ to 30 रुपीज़, 10 से 30 रुपये, कितनी दूर जा रहे हैं उस बेसिस पे इनको मिलते थे। इनके रहने की बात तो ये ही यूज्ड टू लिव विद हिज फ्रेंड इन द रेंटेड रूम, सब दोस्तों ने मिलकर एक साथ किराए पर घर ले रखा था और उसी में वो रह रहे थे। अबाउट वॉट एवर ही अर्न, ठीक है, इन्होंने जितना भी कमाया, फ्रॉम इट ऑलमोस्ट ही सेज ही अर्न्स 200 to 300 रुपीज़ पर डे, 200 से 300 रुपये पर दिन वो कमा लेते थे। और उनका एक्सपेंडिचर जो आता था ना, वो 100 से 150 आता था फूड और रेंट को लेकर के, खाने और प्लस रेंट, किराए को लेकर के, ये उनका एक्सपेंडिचर आता था, ये उनका खर्चा आता था। जो कुछ भी बाकी बच जाता था उसको वो सेव करते थे और सेव करके वो अपनी फैमिली के पास भिजवाते थे, जो अभी भी विलेज में रह रही है। हालांकि जो ये कमा रहे थे इट वॉज सफिशिएंट फॉर द फैमिली, उनसे उनका घर तो चल जाता था। स्टिल उनकी वाइफ जब एग्रीकल्चर फील्ड्स में जाके वर्क करती थी। ठीक है, फिर उन्होंने चैप्टर में एक सर्वे के बारे में बताया, वो सर्वे ये बोलता है कि अहमदाबाद में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें से 12%, मान लो 100 अगर वर्कर्स हैं, उसमें से 12 लोग ऐसे हैं जो स्ट्रीट्स पे काम कर रहे थे, स्ट्रीट्स पे स्टॉल वगैरह लगा के सड़कों पे सीधा काम कर रहे थे। या तो वो किसी चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं या किसी चीज़ को बेच रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कॉबलर वगैरह, बार्बर वगैरह, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम चल रहा था। बेसिकली जो ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे बार्बर हो गया, आपका कॉबलर हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, ये इंडिविजुअली अपना इंडिपेंडेंटली सब कुछ जो है ऑपरेट कर रहा है। इनको किसी के जवाबदेह नहीं है, ये किसी को आंसरेबल नहीं है, इनका बिजनेस है, ये खुद ही इसको मैनेज करेंगे, खुद ही हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये गुड्स सर्विसेज जो भी सेल आउट करना है, जो भी प्रोवाइड करना है, वो सब करते हैं। इनके लिए जो रहने की जगह होती है वो बहुत टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी आप कह सकते हो कि शॉप्स होती है, इनकी जो शॉप्स है वो टेम्परेरी शॉप्स है। या तो इन्होंने डायरेक्टली पेमेंट्स पे, देखा होगा ना, बहुत सारी जगह सड़क के किनारे लोग जो है वो चादर वगैरह लगा के उस पर गुड्स रख के बैठे होते हैं, अपना सामान रख के बैठे होते हैं, जिनको वो सेल आउट कर रहे होते हैं। वैसे ही या तो पेवमेंट्स के साइड पे इन्होंने सेटअप कर रखा है, टेम्परेरी शॉप्स हो गई, प्लास्टिक शीट्स हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें तरीके से इन्होंने भी इन चीज़ों को एक्सपेंड कर रखा है। तो दे आर ऑपरेटिंग इंडिविजुअली, दे हैव टेम्परेरी शॉप्स, ओके, मेड वाया प्लास्टिक शीट्स को लगा के पेवमेंट्स के अराउंड एक्सेट्रा, ओके, एक्सेट्रा वेज। देन दे आर वल्नरेबल फॉर द पुलिस इंटरवेंशन, दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल एनी मोमेंट। उनको किसी भी वक्त बोला जा सकता है कि आप ये इलाका खाली करो, आप यहाँ पे पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि देखो, अगर पेवमेंट आप रोक करके बैठे हो तो लोगों को जो पैदल चल रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इस वजह से दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल एनी मोमेंट, so they are very vulnerable to the police intervention. Furthermore, even there are restrictions on them to enter into several areas. बहुत सारी जगह पे तो उन्हें उनका जाना ही निषेध होता है, मना होता है कि आप कहीं पे जा ही नहीं सकते हो। अब आप किसी चीज़ का बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो, मैं बोल दूँ आप इस गली में जा ही नहीं सकते, तो इस गली में जितने भी लोग रह रहे हैं आपकी सर्विसेज उनको कभी नहीं पहुंच पाएगी, उन तक नहीं पहुंच पाएगी। सो आई एम डिनाइंग यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर बिजनेस, तो ये उनको, ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी लिमिट अप कर देती है। ये एक इशू भी मतलब होता है, उनको फेस करना पड़ता है टेम्परेरी शेल्टर वालों को। देन व्हाट ऑफन आर दे सेलिंग, वो जो सेल आउट कर रहे हैं, इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड देयर फैमिलीज ओनली। जैसे भुजिया, बिस्किट, ऐसी कोई चीज़ें सेल आउट करें तो वो खुद ही बना रहे हैं, उनकी फैमिली वाले बना रहे हैं और उसी को वो जो है सेल आउट कर रहे हैं।
इससे कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है? हाँ बिल्कुल है। देखो, अगर हम बात करें इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, इन ऐसे जो टेम्परेरी जो शील्ड्स लगा के बैठे हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द लोकल इकोनॉमी, ठीक है, लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा है, वो चीज़ें जो है ऑलमोस्ट आपको रोड पे लाके प्रोवाइड करके दे रहे हैं, आपको मेन मार्केट्स की तरफ भागना नहीं पड़ रहा है, तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द लोकल इकोनॉमी फर्स्ट ऑफ ऑल. Second thing, they are posing certain challenges as well. So if we talk about the challenge they are posing, they are having informal status and because of which they are having insecurities. ठीक है, और अक्सर ये बोला जाता है कि इन लोगों की वजह से सड़क का रास्ता रुकता है, ठीक है, इन लोगों की वजह से नॉर्मल लाइफ को लॉस हो रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, या कई ऐसी कंप्लेंट्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं. देखो, ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स आर अक्रॉस आवर कंट्री. दिस इज द स्टडी स्टैट से ये, और ये बोलता है कि लगभग 1 करोड़ हमारी कंट्री में जो है स्ट्रीट वेंडर्स है, सड़क पर रहने वाले, वहाँ काम करने वाले लोग हैं. इनके वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैव हाईलाइटेड देयर बेनिफिट्स. देखो 1 करोड़ बहुत है, छोटी बात नहीं है 1 करोड़ लोगों का सड़क पर रहना, स्ट्रीट वेंडर्स की तरह काम करना. दो वी हैव अ वेरी हाई पॉपुलेशन, तो 1 करोड़ उसके आगे कुछ भी नहीं है, बट स्टिल 1 करोड़ इज़ अ ह्यूज नंबर. तो अब 1 करोड़ लोग अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ही सही, कुछ बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली होंगे. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इनके बेनिफिट्स जो है वो हाईलाइट कर रही हैं कि लोकल इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन है. फर्दर इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया इनका राइट टू अर्न, कि एटलीस्ट दे हैव राइट टू लाइवलीहुड्स. ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ, और उसी राइट टू लाइफ में है राइट टू लाइवलीहुड. ठीक है, यू हैव टू लिव विद डिग्निटी. तो कम से कम आपको कमाना तो पड़ेगा ना अपनी लाइफ को फुलफिल करने के लिए, वरना इन राइट्स का कोई मायना ही नहीं रह जाएगा. तो उसके लिए ज़रूरी है. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये हाईलाइट किया कि दे टू हैव द राइट टू अर्न, दे मस्ट नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड एज सच. गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग टू मॉडिफाई द लॉज विच आर बैनिंग योर स्ट्रीट वेंडर्स. बहुत सारे ऐसे लॉज हमारी गवर्नमेंट ने बनाए थे, ठीक है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स पे बैन लगा दिया था. ठीक है, अभी गवर्नमेंट क्या है, वापस इसको थिंक कर रही है कि वी नीड टू मॉडिफाई इट. ठीक है, समझते हैं कि स्ट्रीट वेंडिंग जो है, ये स्ट्रीट वेंडर्स जो है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक साइड का नहीं सोच सकते, हमें उनकी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होगा. इसलिए देर आर वेरियस सजेशंस अबाउट द हॉकिंग जोन्स एज वेल, कि इनको सेपरेटली हॉकिंग जोन्स बना के ही दे दिए जाए कि यहाँ पर आओ और यहाँ पर आपका जो है मार्केट लगाओ और सब सेल आउट करो. ठीक है, तो पर्टिकुलर इनको भी एक जोन दे दिया जाए जहाँ पे ये अपनी जो है मार्केट वगैरह लगा सके. इट इज़ ऑल्सो सेट दैट वी नीड टू सेट अप सर्टन कमिटीज टू मेक सच डिसीजन. इनके बिहाफ पे, इनके लिए डिसीजंस बनाने के लिए हमें कमिटीज़ की भी ज़रूरत है, और ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है ना, ये बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करती है, फोकस भी करती रहती हैं. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ अबाउट इन द मार्केट. ये सारी चीज़ें जब वो इनसे मिल के जा रहे हैं, बच्चों मंजी जो है वो उनको एक जगह ड्रॉप कर देते हैं. ठीक है, अब जहाँ पे वो ड्रॉप कर रहे हैं ना, वो मार्केट का रीजन है. ठीक है, अब मार्केट रीजन में ड्रॉप करने के बाद में वो देखते हैं कि शॉप्स जो है ना वो ओपन अप हो रही हैं सुबह सुबह, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो क्राउड भी बहुत ज़्यादा है. देखा होगा ना, मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है जब फेस्टिवल सीजन होता है. तो बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन क्राउड बहुत ज़्यादा है. तो वो जब उसमें से चलते चलते लास्ट तक जाते हैं ना, तो दे गो एंड विजिट अ डेंटिस्ट. डेंटिस्ट जो दांतों का डॉक्टर होता है, तो उसको जा कर के वो लोग मिलते हैं, क्योंकि उसकी सिस्टर को कैविटी फिलअप करवानी होती है, तो वो दिखाने के लिए वहाँ जाते हैं. वहाँ से निकलने के बाद में वो एक गारमेंट शॉप में, शोरूम जो है वहाँ जाते हैं, जो कि 3 फ्लोर्स होता है. ओके, 3 फ्लोर है. फिर इसमें से जो 3rd फ्लोर होता है ना, वहीं पे गर्ल्स के लिए सारे कपड़े वगैरह मिलते हैं, तो ये वहाँ भी जाते हैं और उसको भी विजिट करते हैं. नेक्स्ट इज हरप्रीत एंड वंदना, द बिजनेस पर्सन्स. अब इनकी स्टोरी क्या है, जब वो वहाँ पे शोरूम वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पे वो क्या सब कुछ सुनते हैं उसके बारे में. हरप्रीत जो है वो एक स्मॉल सी शॉप रन कर रही होती है, और उसके पेरेंट्स जो है ना वो बेसिकली उनकी शॉप होती है. ठीक है, तो वो बताती है कि संडे को और जब फेस्टिवल सीज़न होता है तो ऑब्वियसली रश बहुत ज़्यादा होता है. तो इन 2 टाइम पीरियड पे ये अपने पेरेंट्स को आके हेल्प करती है. उसने ये सारा काम जो है अपने स्कूल कॉलेज ख़त्म होने के बाद, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में वो ये काम आकर के करती है. तो ये जो है हरप्रीत बताती है.
वंदना जो है वो बोलते हैं कि हमने बहुत रिसेंटली ये शोरूम जो है ये ओपन किया है, बहुत रिसेंटली ये शोरूम जो है हमने स्टार्ट किया है। वो एक ड्रेस डिज़ाइनर होती है और वो बोलती है कि अब अभी जो आज की जो जनरेशन है उनके लिए प्रेफरेंस जो है वो रेडीमेड क्लोथ्स है। ओके, ऑल दे आर प्रेफरिंग इज द स्टिच्ड क्लोथ्स। ओके, वो कपड़ा नहीं लेके जाते हैं कि हम स्टिच कराएं, नहीं, उनको स्टिच्ड ही चाहिए। इसके साथ साथ में जो हम प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेबल, हम बोलते हैं ना चीज़ें प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, तो उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि जो कुछ भी है, जो डिस्प्ले है ना हमारा, उसका अट्रैक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्प्ले का अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सामान अच्छे होने के साथ साथ उसको दिखाना भी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तभी लोग आते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हम जितना भी मटेरियल है हमारे पास जो है, वी ऑल आर गेटिंग इट फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस। ओके, बहुत अलग अलग जगह से ला रहे हैं, गुड़गांव से ला रहे हैं, नोएडा से ला रहे हैं। ठीक है, नोएडा हो गया, गुड़गांव, अभी गुरुग्राम भी बोलते हैं ना इसे, गुरुग्राम। ठीक है, वहाँ से लुधियाना से, अहमदाबाद, मुंबई, तिरुपुर। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी जगह बताई कि हम अलग अलग जगह से जो है गुड्स लेकर के आते हैं और उनको इकट्ठा करके यहाँ पे सेल आउट करते हैं। सिर्फ नेशनल ही नहीं, इवन हमारे पास इंटरनेशनल भी है। सो हमारे पास गुड्स जो है वो फॉरेन से भी आ रहे हैं, हम उनको भी सेल आउट कर रहे हैं हमारे बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, बिकॉज दे आर ओइंग देयर बिजनेस, सो नोबडी इज गोइंग टू do anything on their behalf, they have to do on their own. So what are all the responsibilities they have to do on their own? ऐसे कौन से काम है जो उन्हें खुद ही करने हैं, खुद ही फुलफिल करना है? तो एडवर्टीजमेंट, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट हो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्दर शी इज सेइंग कि ये जो शोरूम हमने अभी अभी खोला है ना, ये भी हमारा खुद का नहीं है, इट इज़ अ रेंटल प्रॉपर्टी। सो ऑल वी हैव टू डू इज पे द रेंट, हमें इसका किराया भी देना पड़ता है। फिर वो बताते कि ये पहले मार्केट था और जब ये मार्केट से मेन मार्केट में बदल गया ना, तब से हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। इतना ग्रो किया है कि तब से हमने एक कार भी खरीद ली, एक अपार्टमेंट को भी हमने बुक कर लिया, तो इतना जो है हमें फ़ायदा हुआ है। सो what are all the conclusions that we are drawing from here is that most businessmen, they have to manage their own shops and businesses. Okay, they obviously employ certain helpers and supervisors. देखा होगा ना, कुछ दुकान वाले जो हैं वो जब दुकान उनकी बड़ी हो जाती है तो वो वहाँ पे कुछ लोगों को रख लेते हैं। द सेम थिंग, जब उनका काम बढ़ जाता है तो वो हेल्पर सुपरवाइजर्स रख लेते हैं। फर्दर परमानेंट शॉप ओपन करने के लिए लाइसेंस देते हैं, कौन देता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड करते हैं कि हफ्ते के कौन से दिन जो है वो हमारा मार्केट जो है वो बंद रहेगा। ठीक है, कौन से दिन, ऑन विच डे ऑफ द वीक मार्केट हैज़ टू बी रिमेन क्लोज। ये इस चीज़ का डिसीजन कौन ले रहा है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, एंड फॉर द परमानेंट शॉप्स लाइसेंस इज ऑल्सो गिवन बाय होम? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, जैसे जिस मार्केट को ये विजिट करने गई हुई है दोनों सिस्टर्स, वो वेडनेसडे को ऑफ रहता है। ठीक है, मार्केट में इन सभी के साथ साथ वो बताती है कि स्मॉल ऑफिसेस, शॉप्स भी अवेलेबल है जो अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लाइक बैंक्स अवेलेबल होते हैं, आपकी कुरियर सर्विसेज अवेलेबल होती है। तो बहुत सारी सर्विसेज जो है वो आपको अवेलेबल वहाँ पे मिल जाती है। अब वो मार्केट से क्या है, फैक्ट्री की तरफ जाते हैं। फैक्ट्री की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है? पहले तो ये जो सिस्टर है उसको, जो नरेटर है उसे जरी का काम करवाना है। ठीक है, क्योंकि कोई ओकेजन आ रहा है। तो जो उनकी कज़न है वो कज़न बोलता है कि आई नो समबडी, आई नो निर्मला एंड हर नेबर। निर्मला का जो नेबर है, उसका जो पड़ोसी है, वो जरी का भी और एम्ब्रॉयडरी का भी जो है काम जो है वो करते हैं। क्योंकि काम करते हैं तो मैंने निर्मला से बात की है, हम जा कर के ये कपड़ा जो है उन्हें दे आएंगे और वो अपना आप काम करवा के हमें दे देंगे। तो इस रीज़न से वो लोग वहाँ पे जाते हैं। अब फैक्ट्री जाने के लिए वो क्या लेते हैं? बस लेते हैं। एंड बस इज़ लिटरली वेरी वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है बस में। पीपल आर पुशिंग एंड पुलिंग ईच अदर टू क्रिएट स्पेस फॉर देमसेल्व्स। ओके, शी सेज दैट विद ईच कमिंग स्टॉप इट सीम्स लाइक नोबडी इज गोइंग डाउन ऑफ द बस बट एवरीबडी इज गेटिंग इनसाइड द बस। वो बोल रहे कि स्टॉप बाय स्टॉप मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ना बस में कोई ना उतर तो रहा ही नहीं है बस में से, सारे बस में चढ़े ही जा रहे हैं। जैसे तैसे उस भीड़ भाड़ से वो मैनेज कर रहे फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री के पास पहुंचते ही ऑल द पीपल इनसाइड द बस कम्स आउट, वो सारे जो है वो बस से बाहर आ जाते हैं फैक्ट्री के पास आकर के।
जब वो जा रहे होते हैं फैक्ट्री की तरफ, जब हेड आउट कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि बीच में बहुत सारे लोग जो है वो ग्रुप बना के जगह जगह पे बैठे हैं, ठीक है। कुछ लोग दीवार पे बैठे हैं, कुछ है ना आपके बाइक पे बैठे हैं, ऐसे करके ग्रुप बना के बैठे हैं। तो जो कज़न होती है ना, वो बोलती है कि ये हमारे यहाँ का लेबर चौक है, लेबर चौक है, ठीक है। यहाँ पे ये जितने भी लोग यहाँ पे आप बैठे हुए जिनको भी देख सकते हो, ऑल द पीपल सिटिंग इन द ग्रुप, दे आर ऑल द लेबर्स, दे आर द हेल्पर्स, ओके, इन द मेसन वर्क। ये मेसन वर्क में सारे जो है काम करवाते हैं। दीज आर द डेली वेज लेबरर्स, ओके। ये डेली वेज है, मतलब रोज़ की दिहाड़ी लेकर के काम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में वो यहाँ से ये सारा क्रॉस करके फैक्ट्री की तरफ चले जाता है। ये जो फैक्ट्री है ना, इट इज़ एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द समर क्लोथ्स एंड दीज समर क्लोथ्स आर एक्सपोर्टेड टू यूएस, यूके, जर्मनी एंड नीदरलैंड, ठीक है। दिसंबर से अप्रैल के टाइम पर जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं लोगों के, बहुत बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ओके। दे इवन वर्क फ्रॉम 9 AM to 10 PM, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रात के वो लोग काम जो है वो करते हैं। 6 दिन जो है उन्हें काम करना होता है वीक में, मतलब एक जो है उनको हॉलीडे मिलती है। पर डे को उन्हें 280 रुपीज़ मिल रहा है, 280 रुपये उन्हें पर डे की दिहाड़ी मिल रही है, पर डे का वेज मिल रहा है। एक्स्ट्रा वर्क जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें कितना 100 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, फॉर एक्स्ट्रा आवर्स उन्हें 100 रुपीज़ दिए जा रहे हैं। जून के टाइम पे क्या होता है, जून के टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है। कम होने की वजह से फैक्ट्री में वर्कलोड जो है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से फैक्ट्री वाले लोगों को क्या करता है, रिड्यूस करना शुरू कर दे, स्टाफ रिड्यूस करता है, ओके। दे विल रिड्यूस द स्टाफ की अब इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो इनके सैलरी क्यों देनी, इससे बेटर है इन्हें निकाल दो। सो ऑल द वर्कर्स ओवर देयर इंक्लूडिंग निर्मला मोस्टली आर द कैजुअल वर्कर्स। Casual workers means they are removed when demand is less, okay, and again when the demand will rise they will be called, so they are called as per the requirement। as per the requirement आ रहा है, इसका मतलब जॉब सिक्योरिटी तो नहीं है, और अगर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इवन उनको इल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, कि अगर वो बोल दे कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वॉशरूम्स अच्छे नहीं है, या आप हमें वेजेस इनफ नहीं दे रहे हो, तो लोग क्या बोलेंगे, ओनर क्या बोलेगा, जाओ छोड़ के चले जाओ, दूसरी जॉब देख लो। अगर वो बुरी तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट भी करता है तो कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज समथिंग दे कंक्लूड इन द फैक्ट्री। वो वहाँ पे उनसे कपड़े देते हैं और वहाँ से वो निकल जाता है ऑफिस की तरफ। जो इनकी आंट है सुधा, वो एक मार्केटिंग मैनेजर होती हैं एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, ठीक है। एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो है मार्केट मैनेजर है। तो उन्हें टाइम दिया होता है, उन्हें टाइम से पहुँचने के लिए वो टैक्सी लेते हैं और टैक्सी लेकर के जो है वो ऑफिस एरिया में चले जाते हैं। वहाँ जा कर के देखते हैं कि कुछ लोग जो है पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग मतलब बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं, कुछ पार्किंग की तरफ, कुछ बसेस की तरफ, छुट्टी हो चुकी है तो लोग जा रहे हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं फैक्ट्री जो है, जिस फैक्ट्री के में ये काम कर रही हैं, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर है, वो फैक्ट्री कहाँ है, वो सिटी के दरअसल बाहर है। सुधा के अंडर ना 50 सेल्स पर्सन काम करते हैं, जो पूरी एंटायर सिटी में अलग अलग जगह पे जा कर के काम कर रहे हैं। अब इनका काम क्या है, ये लोग दुकान वाले से ऑर्डर लेके आएंगे, दे आर गोइंग टू गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स एंड दे विल कलेक्ट द पेमेंट्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स। तो शॉपकीपर्स से वो क्या ऑर्डर्स भी लाएंगे और पेमेंट्स भी लाएंगे। भाई अगर ऑर्डर लेकर के आए तो उतने बिस्किट बनाएंगे, फिर सप्लाई करेंगे, फिर उसका पेमेंट भी तो लेकर के आएंगे ना, फ्री में थोड़ी दे दिए। तो ये दोनों ही काम किसके है, सेल्स पर्सन के होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने टोटल सिटी को ना, सुधा ने टोटल सिटी को, पूरी सिटी को टोटल 6 रीजन्स में डिवाइड कर लिया, 6 रीजन्स, ठीक है। एक सिटी को कितने रीजन्स में डिवाइड किया, एक सिटी को 6 जोन्स में डिवाइड कर लिया, 6 रीजन्स में। तो वो हर सेल्समैन से एक दिन मिलती है, तो वो मंडे टू सैटरडे ऑल 6 से मिल लेती है। अब मिल के वो क्या करती है, वो चेक करती है प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, कितनी प्रोग्रेस हुई है हमारी कंपनी की, ठीक है, पर सेल्समैन ने कितना सेल आउट किया है। फर्दर जो भी प्रॉब्लम्स है, किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने का काम जो है वो सुधा जो है वो करती हैं, ठीक है। उनको बहुत बार होता है कि उन्हें बहुत लेट आज तक जो है वो काम करना पड़ता है, एंड इवन उन्हें बहुत अलग अलग जगह पे ट्रैवल भी कई बार जो है करना पड़ जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ऑब्वियसली उस जगह पे जाना होगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इस जॉब के साथ साथ उन्हें एक परमानेंट वर्क मिला हुआ है, उनकी जॉब की सिक्योरिटी है,
ओके, और उनको टाइम से रेगुलर सैलरी भी जो है वो मिल रही है, ठीक है। इस परमानेंट वर्क के साथ कुछ बेनिफिट्स आते हैं हमेशा साथ में, तो इन्हें भी कुछ बेनिफिट्स है, जैसे सेविंग्स फॉर द ओल्ड एज, ठीक है। तो ओल्ड एज के लिए उन्हें सेविंग्स मिल रही है। इससे क्या होता है, कुछ फंड्स जो है इनकी सैलरी से वो गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। फर्दर इस पे इंटरेस्ट लगा के जब ये रिटायर होंगी तो उनको रिटर्न किया जाएगा। इंटरेस्ट लगा के इन्हें जो है रिटर्न करता है, तो ये उनको ओल्ड एज में काम आएगा, ठीक है। ये उनके बुढ़ापे में उन्हें काम आएंगी। ये होता है एक प्रॉफिट हो गया उन्हें। सेकेंड प्रॉफिट इज अबाउट हॉलीडेज। उन्हें संडे भी ऑफ मिलते हैं, सारे नेशनल हॉलीडेज जो हैं वो भी ऑफ मिल रहे हैं, और इवन कुछ एनुअल लीव्स भी उन्हें मिलती हैं। एनुअल लीव्स, उन्हें पेड लीव्स भी मिलती हैं कुछ, ठीक है। तो ये उन्हें एक प्रॉफिट हो रहा है। थर्ड इज अबाउट फैमिली, ओके। उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर बात करोगे, कुछ अमाउंट जो है ना वो उन्हें और उनकी फैमिली को, अमाउंट उन्हें भी मिलता है और उनकी फैमिली को मिलता है जस्ट फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस। उनके दवाइयों पानी के खर्चे को लेकर के उन्हें मिलता है। इवन उन्हें मेडिकल लीव भी मिलती है, अगर वो बीमार है तो उन्हें मेडिकल लीव भी मिलेगी। इफ़ शी इज़ इल शी विल गेट अ मेडिकल लीव एज वेल, ठीक है। ये सारा कुछ जो है वो नोटिस आउट करते हैं। इसके बाद में वो सब आंटी के साथ कार में बैठते हैं और घर आ जाते हैं, ठीक है। अब व्हाट शी इज़ फिगरिंग आउट, वो क्या बता रही है, उसने हमें बताया कि कितने टाइप के वर्क हैं, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स बताए, कुछ टेम्परेरी फैक्ट्री वर्कर्स बताए, ठीक है, कि टेम्परेरी शॉप्स भी बताई। फिर उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स बताए, लेबर चौक्स के बारे में बताया, रिक्शा वाले की लाइफ बताई, ठीक है। फिर उन्होंने परमानेंट जॉब जो है ऑफिस वाले उनके बारे में बताया। तो हमने कितनी वैरायटी ऑफ वर्क जो इन्होंने देखा। वो डेंटिस्ट के पास गए, वो जॉब भी वो देख करके आ रही है। फर्दर व्हाट शी इज सेइंग कि इन सब लोगों का है ना कभी आज तक मिलना नहीं हुआ है। दे हैव नेवर मेट प्रोबेबली, बहुत कम हुआ होगा कि कोई एक दूसरे से टकराया होगा, लेकिन फिर भी ये सब साथ मिल करके एक सिटी लाइफ बना रहे। दे आर फॉर्मिंग अ सिटी लाइफ, ओके, दे आर मेकिंग द सिटी लाइफ। अगर इनमें से 10 जने भी बाहर चले जाए, एक भी अगर बाहर चला गया ना, तो सिटी लाइफ खत्म है। कि अगर बिस्किट बनाने वाले सारे ही सिटी छोड़ के चले गए तो प्रॉब्लम है ना सिटी में। अगर रिक्शा वाले सारे सिटी छोड़ गए तो ये अगेन एक प्रॉब्लम है। तो सबकी ज़रूरत है, सब साथ में आकर के इन्होंने सबने मिल करके सिटी बना रखी है। दिस इज समथिंग शी सेड। So as I told you in the very beginning, all we are going to see in it is that how people are living, how they are earning, उनकी living क्या है, उनकी earning के sources क्या है। तो हमने देखा बहुत अलग अलग sources है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई डेंटिस्ट है, किसी के पास परमानेंट वर्क है, कोई फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, कोई जरी का काम कर रहा है। तो सबका अलग अलग जॉब हमने देखा कि उनका अर्निंग क्या है। फिर हमने देखा उनके कुछ चैलेंजेस है, जैसे टेम्परेरी जॉब्स हैं जिनके पास, उनके लिए चैलेंज है क्योंकि जब काम नहीं होगा तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। दे विल हैव टू सर्च फॉर अनदर वर्क। फिर हमने देखा कि जो विलेजेस से नए अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में आए हैं उनको अगेन प्रॉब्लम है, वेजेस कभी प्रॉपर होते हैं कभी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बच्चू मंजी का देखा, अब वो बीमार होगा तो वो रिक्शा नहीं चला पाएगा, तो ऑब्वियसली दैट डे विल बी अ लॉस डे फॉर हर। उस दिन उनको तो लॉस ही होगा ना। अगर वो 200 रुपये कमा रहे हैं दिन के, 300 कमा रहे हैं, तो उनका तो उस दिन के लिए घाटा ही हो गया। तो अगेन हमने कुछ चैलेंजेस देखे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि इनके यहाँ आने से जो है उनकी कंडीशन जो है वो बेटर होगी। तो सबके प्रॉज और कॉन्स है, तो ये जो है ये प्रॉज कॉन्स यहाँ पे सबके हैं। बेसिक्स अगर एक बात करोगे ना, तो यहाँ पे ट्रेडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रूरल लाइवलीहुड जो हमने पिछले हमने चैप्टर में पढ़ी है, और जो ये चैप्टर है अर्बन लाइवलीहुड, ऑब्वियसली दे आर सस्टेनिंग ऑन ईच अदर। ये जो कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, वो रूरल एरियाज़ में जा रहा है, और रूरल एरिया से इसका रॉ मटेरियल आ रहा है, तो दे आर सस्टेनिंग ईच अदर, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक को हटा दो तो दूसरे का काम चल जाएगा, नहीं, इनका बहुत बड़ा इंटरडिपेंडेंस है। ये हमें समझना होगा, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक भी खत्म हो जाता है ना, तो ये बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए, ठीक है। तो वी नीड टू हैव बोथ ऑफ देम, दोनों ज़रूरी है हमारे लिए। वी शुड वैल्यू बोथ ऑफ देम, रेस्पेक्ट बोथ ऑफ देम, ओके। सो विद दिस आज चैप्टर एंड, और सिर्फ चैप्टर ही नहीं, हमारी 6th की जो सिविक्स की NCERT है SPL वाली, वो भी फिनिश अप हो गई है। तो हमने 2 NCERTs ख़त्म कर लिए, हिस्ट्री की भी कर लिया और सिविक्स की भी कर लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बिगिन विद द ज्योग्राफी NCERT, ओके। आई ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स एज सुन एज पॉसिबल सो दैट वी कैन हेड टू आवर मेन बुक्स। 6th 7th 8th करके हम हमारी मेजर बुक्स पे जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपने इन्जॉय किया हो। तो नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव।
आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ लो। ग्रुप आपको पता है UPSC एडुकेयर 0918, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स ace our UPSC together. Thank you for attending the class. Thank you.